Hey guys, in this lecture we will see the Rankine earth pressure in cohesive soil. The Rankine original theory was for cohesionless soil, but later on it is necessary to find out the earth pressure for cohesive soil too. So so the theory was extended by Russell, Russell and Bell for cohesive soil, but it is still known as Rankine earth pressure theory. In this theory, there is slight modification only. In Rankine earth pressure for cohesionless soil, there is no intercept, but for cohesive soil, there is some intercept, and we have seen that thing in revised Mohr column theory also. Okay, so this is here, this is intercept, that is C, and C is cohesion intercept. Okay, and this is failure envelope. This is failure envelope. Okay, चलो अब देखते हैं कि रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी, ठीक है, फॉर एक्टिव केस, फॉर एक्टिव केस। अब रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी एक्टिव केस के लिए क्या है? तो एक्टिव केस के लिए हमें मालूम है कि क्या होता है, ये जो मेरा बैकफिल है, ठीक है, ये किधर जाना चाहेगा? टुवर्ड रिटेनिंग वाल, और ये रिटेनिंग वाल अपने टुवर्ड लेफ्ट, मतलब अवे फ्रॉम बैकफिल मूव होना चाहेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग अर्थ प्रेशर जो लेते हैं वो के ए हम लोग लेते हैं, डेट इज इक्वल टू 1 - sin φ 1 + sin φ, ठीक है। सो ये अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी बताया कि जो भी कोहेसिव सॉइल है उसमें क्या होगा, कुछ कोहेसन इंटरसेप्ट होगा। तो देखते हैं अब क्या है ये। सो हेयर वी हैव मोहर कॉलम एंड फेलियर एनवेलप, ओके, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, तो ये है मेरा सी डैश कोहेसन इंटरसेप्ट, इट इज माई sigma 3 and this is sigma 1. Sigma 3 is passive force, ठीक है, later we will use that, and sigma 1 is vertical force, that is gamma z, okay, and CD is radius of this circle. EC is sigma 1 minus sigma 3 by, sorry, yes, sigma 1 minus sigma 3 by 2, and OC is sigma 1 plus sigma 3 by 2, okay. So here CD is equal to CB is equal to EC is equal to how much? Sigma 1 minus sigma 3 by 2, since CD, CB and EC all three are radius, and OC is equal to sigma 1 plus sigma 3 by 2, okay. So consider in triangle, FDC, FDC, and this is phi dash, okay, and this is 45 plus 5 by 2, or let's say it is 5,
phi, actually it is phi dash. If here, if this is c dash, then it is phi dash. Okay. In triangle FDC, sine phi is equal to dc by fc. Okay, or it can be written as dc by fc is fo plus oc, and of is nothing. Of is c dash cot phi. Since cot is equal to cot phi is equal to base by perpendicular, means OF by OC, then it is okay. Or DC can be written as sigma 1 plus sigma 3 by 2, sigma 1 sorry, minus sigma 3 by 2 whole divided by OF is C cot phi plus OC sigma 1 plus sigma 3 by 2. So here we have sine phi is equal to sigma 1 minus sigma 3 by 2 whole divided by c cot phi sigma 1 plus sigma 3 by 2. Okay, by rearranging it will be c cot phi sine phi plus sine phi sigma 1 plus sigma 3 by 2 is equal to sigma 1 minus sigma 3 by 2, or 2c cot phi sin phi plus sin phi sigma 1 plus sigma 3 is equal to sigma 1 minus sigma 3, or better to write 2c cot phi is cos by sin. It can be written as 2c cos phi plus sin sigma 1 plus sigma 3 is equal to sigma 1 minus sigma 3. We have 2c cos phi plus sin phi sigma 1 plus sigma 3 is equal to sigma 1 minus sigma 3. Okay. Okay. Taking sigma 1 common and sigma 3 common, we get 2c cos phi is equal to sigma 1 1 minus sin phi minus sigma 3 1 plus sin phi. So it can be written as sigma 3 1 plus sin phi is equal to sigma 1 1 minus sin phi minus 2c dash cos phi, or sigma 3 is equal to sigma 1 1 minus sin phi by 1 plus sin phi minus 2c dash cos phi by plus sin phi. Okay, and this is nothing but it is coefficient of active earth pressure, and sigma 3 is PA and sigma 1 is vertical pressure, which is equal to gamma z. So it can be rewrite as PA is equal to gamma z Ka minus 2c dash cos phi by 1 plus sin phi, or better to say
1 minus sin phi, sorry, 10 45 minus 5 by 2 is 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. It is 10 square 45 by 45 minus 5 by 2 can be written as 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi, and 10 45 degree minus 5 by 2 is equal to cos phi 1 plus sin phi. Okay, so replacing the sin phi, sin and cos term by 10, it can be written as PA is equal to gamma z into 10 square 45 minus 5 by 2 plus 2c dash 10 45 minus 5 by 2, where since 10 square 45 minus 5 by 2 is nothing but coefficient of earth pressure, active earth pressure, that is Ka. So that, sorry, this term is gamma z Ka plus 2c root Ka. So here we got the required equation. Okay, Pa is equal to Ka gamma z plus, sorry, it is minus, here it is minus, so here it is minus 2c root K. Okay, now so we find what is the Rankine earth pressure for cohesionless soil. It is, oh sorry, for cohesive soil. It is for cohesive soil since C dash is cohesion intercept. Okay, so this equation gives us the active earth pressure at depth Z. Okay, so what happen if the Z is equal to 0? If Z is equal to 0, we have PA is equal to Ka gamma into 0 minus 2c root Ka, means PA is minus 2c dash root Ka. Here is a negative sign, means it produce tension. Means if the Z is 0, then there is tensile stress in the system. Okay, so let's see what is this. चलो एक बना लेते हैं, रिटेनिंग वॉल। ये मेरा एक रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, और ये है ग्राउंड सरफेस। ओके, अब कह क्या रहा है कि पी ए इज इक्वल टू माइनस 2c डैश रूट ओवर के ए इफ जेड इज इक्वल टू 0। मतलब अगर जेड मेरा 0 हो गया तो यहाँ पर क्या प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे अब दिखाएं? ठीक है, तो इसको दिखाया जा सकता है, हम सपोज कर ले रहे हैं कि Z0 इज Z0 क्या है, एक ऐसा डेप्थ है जहाँ पर मेरा प्रेशर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो लेट एज्यूम ये मेरा हुआ Z0 और Z0 बोलो, ZC भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा मेरा, तो कुछ इस टाइप का।
जेड सी, ये मेरा रिटेनिंग वाल। ठीक है, अब जेड इज इक्वल टू 0 पे नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, कितना, -2 मीन्स 2C' के ए। ठीक है, 2C' के ए। ठीक है, अब इस जगह मेरा बॉटम ऑफ द रिटेनिंग वाल। ठीक है, अब इस जगह मेरा कितना प्रेशर होगा, तो अभी देख रहे हैं क्या है, इन टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ मेरा कितना प्रेशर लगेगा, तो के ए गामा एच, अगर इसका हाइट एच है तो ये कितना है, एच है, तो के ए गामा एच। तो के ए गामा एच में क्या करेंगे, हम इसको घटा दें। ठीक है, यही है, ये टोटल कितना लग रहा है, के ए गामा एच, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो के ए गामा एच -2C√, के ए, ये मेरा बॉटम में इतना प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है कि एक मेरा लेफ्ट साइड है और एक मेरा राइट साइड, मतलब ये टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है और ये कंप्रेशन, मतलब ये कहीं पर तो जाके कटेगा। ठीक है, इस जगह में प्रेशर कितना है, 0। तो अब ये 0 कितना कैसे हो रहा है, ये देखा जाए। सो मेरे पास इक्वेशन था, क्या था मेरे पास इक्वेशन, था मेरे पास पी ए इज इक्वल टू गामा जेड के ए -2C' के ए, यही निकाला था। तो पी ए इज इक्वल टू कितना है, 0 इस पॉइंट पे। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू गामा जेड के ए -2C' के ए, जेड इज इक्वल टू 2C' के ए बाई गामा के ए और 2C' बाई गामा रूट के ए। अब यही जेड को हम क्या बोलेंगे, जेड सी। ठीक है, ये जेड सी क्या है, डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक। ठीक है, मतलब इस जेड सी के ऊपर क्या है, ये जो जोन है ये मेरा क्या है, जोन टेंसाइल जोन है। ठीक है, इस जोन में क्या होना चाहेगा, अगर ये मेरा जेड सी है तो यहाँ का सॉइल क्या होना चाहेगा, कि ये जो सॉइल है यहाँ पर फिल किया हुआ ये बाहर जाना चाहेगा, मतलब रिटेनिंग वाल से सेपरेट होना चाहेगा। और इसके नीचे का जो भी सॉइल है, ठीक है, ये मेरा जेड सी है, इसके नीचे का जो भी सॉइल है वो क्या होना चाहेगा, तो वो रिटेनिंग वाल में उस फोर्स लगाएगा, मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा और ये टेंसाइल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यही होता है मेरा टेंसाइल डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक जेड सी। ठीक है, above which it is tensile zone and below which it is compressive zone। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो जेड सी टेंसाइल जोन है ये कैसे फोर्स लगाएगा, इधर। ठीक है, और कंप्रेसिव जोन कैसे फोर्स लगाएगा, मतलब बिलो जो जेड सी है टुवर्ड्स रिटेनिंग वाल। ठीक है, ये भी टुवर्ड्स रिटेनिंग वाल है, लेकिन सॉरी अवे फ्रॉम रिटेनिंग वाल है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पर ये क्या होगा, अगर इसको हम देखें तो इस जोन के लिए क्या हो रहा है, टोटल नेट अर्थ प्रेशर 0 हो रहा है। इस जोन का नेट अर्थ प्रेशर 0, क्योंकि ये टेंसाइल लगा रहा है और ये कंप्रेसिव, ये अवे फ्रॉम वाल, ये टुवर्ड्स द वाल, तो ये नेट अर्थ प्रेशर क्या है, 0। तो ये जेड सी है तो ये भी कितना होगा, जेड सी होगा। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि एट द डेप्थ ऑफ 2 ZC, at the depth of 2 ZC, the net pressure is 0. इस जोन में क्या है, नेट अर्थ प्रेशर मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब भी हम रिटेनिंग वाल बनाएंगे, ठीक है, तो अब क्या है, जो रिमेनिंग जो लग रहा है प्रेशर, इसके लिए हम यहाँ पर रिटेनिंग वाल डिज़ाइन कर सकते हैं। और वो भी किस पे डिपेंड करेगा, के ए किस पे डिपेंड कर रहा था, 5 पे, और ये सी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सी डैश और 5 डैश पे। सी डैश मेरा कोहेशन इंटरसेप्ट और 5 डैश एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, इस पे मेरा डिपेंड करेगा। ओके, अब ये H इज इक्वल टू 2 ZC हो गया। तो ZC हम लोग देखा कितना है, ट्वाइस इंटू 2C डैश बाई गामा रूट ओवर के, तो इट इज 4C डैश बाई गामा रूट ओवर के। H इज इक्वल टू इतना, मीन्स ये क्या हो गया, क्रिटिकल हाइट ऑफ अनसपोर्टेड वर्टिकल कट। ठीक है, मतलब ये जो वर्टिकल कट है ये अनसपोर्टेड हो सकता है, इसका ये क्रिटिकल डेप्थ हाइट है मेरा। ठीक है, अब इफ फाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये कोहेशन लेस हो गया। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 1, तो उस केस में एच इज इक्वल टू 4 सी डैश बाई गामा। ठीक है, एच क्रिटिकल एच सी। ठीक है, नेट अर्थ प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच सी। अगर फाइव 0 हो गया मतलब ये फॉर कोहेशन लेस सॉइल, फॉर कोहेसिव सॉइल इट इज 4C डैश बाई गामा रूट ओवर के है, एंड फॉर कोहेशन लेस सॉइल इट इज दिस मच। ओके, एंड ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कब देखना है, एक हमने देखा था कि एक टेंसाइल जोन बन रहा था। ठीक है, तो जस्ट बिफोर टेंसाइल क्रैक एंड आफ्टर टेंसाइल क्रैक। ठीक है, बिफोर टेंसाइल क्रैक एंड आफ्टर टेंसाइल क्रैक क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो बिफोर टेंसाइल क्रैक, अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसे बना, ठीक है, इट इज 2C डैश रूट ओवर के ए, और ये मेरा आया था के ए गामा एच माइनस 2C डैश के ए। ठीक है, कैसा आया था, इसे रेक्टेंगुलर हमने कंसिडर कर लिया था और इस पोर्शन को हटा दिया था ऐसा। ठीक है, ये होल के लिए गामा डैश के एच, और इस पोर्शन का वैल्यू 2C रूट के, इसको हटा देने से ये मिल गया। ठीक है, अब बिफोर टेंसाइल क्रैक, मतलब यहाँ पर टेंशन जो क्रैक है वो डेवलप होने से पहले पहले क्या हो रहा है, तो इस केस में मेरा ये भी इफेक्टिव है और ये जोन भी इफेक्टिव है, दोनों जोन मेरा इफेक्टिव है। ये जो लेटरल अर्थ प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है और ये नेगेटिव अर्थ प्रेशर मीन्स जो टेंशन जोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस दोनों का एरिया निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू इस ट्रायंगल का क्या होगा, बेस, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, तो के ए गामा एच, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज एच। ठीक है, माइनस, अब इस टोटल जोन में से, इसमें से इस
टोटल में से, ठीक है, अगर इसको घटा दिया जाए, इस पूरे को घटा दिया जाए, इस पूरे को घटाएंगे तो क्या होगा, 2c-√ka इंटू इसका एरिया इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये जोन, कौन सा जोन, ये जोन, इस जोन को क्या कर रहे हैं, एक बार जोड़े और दूसरा बार इसके साथ घटा दिया, मतलब ये जोन हट के क्या बचेगा, ये जोन बचा मेरा, ये ट्रायंगल बच गया, ठीक है। तो ये मेरे को मिल जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू के ए गामा एच स्क्वायर माइनस 2c-√के ए, ओके। सो एक्टिव अर्थ प्रेशर बिफोर टेंसाइल क्रैक इज हाफ के ए गामा एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 2c-h√के ए, ठीक है। अब ये कौन सा केस था, बिफोर टेंसाइल क्रैक, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, आफ्टर टेंसाइल क्रैक। अब जब टेंशन क्रैक हो गया मतलब क्या हो गया, ये जो जोन है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ये सेपरेट हो गया। जब सेपरेट हो जाएगा तो इसका कोई इफेक्ट इस रिटेनिंग वॉल पे नहीं आने वाला। तो बचा क्या मेरे पास, इफ ए बी सी देन डी ई, तो ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई के कारण जो इफेक्ट होगा वो मेरे को दिखेगा। तो ट्रायंगल सी डी ई का हम लोग प्रेशर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू हाफ, सेम हेयर वी हैव अ ट्रायंगल सी डी ई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, के ए गामा एच माइनस 2c-√के ए, ठीक है, इंटू हाइट क्या बचा, अब ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना था, जेड सी, तो ये हो जाएगा एच माइनस जेड सी इंटू एच माइनस जेड सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर माइनस हाफ के ए गामा एच जेड सी माइनस 2c-h√के ए प्लस 2c-√के ए इंटू जेड सी, ठीक है। एंड बाई पुटिंग जेड सी इज इक्वल टू, जेड सी क्या था मेरे पास, 2c- गामा√के ए, सो हाफ के ए गामा एच स्क्वायर माइनस हाफ के ए गामा एच इंटू जेड सी, 2c-√के ए गामा के ए माइनस 2c-h√के ए प्लस 2c-√के ए इंटू 2c-गामा√के ए। तो ये हो जाएगा हाफ गामा एच स्क्वायर के ए माइनस 2c-h√के ए प्लस 2c- गामा प्लस 2c- बाई गामा, के कैंसिल, ओके। पी ए इज इक्वल टू, so we have PA is equal to half
गामा एच स्क्वायर के ए माइनस 2c' h रूट ओवर के ए प्लस 2c' स्क्वायर बाई गामा। ये मेरा मिल गया। ये क्या है? आफ्टर टेंसाइल क्रैक। ठीक है, एक्टिव प्रेशर आफ्टर टेंसाइल क्रैक। तो मेरे को दो मिल गया। एक बिफोर टेंसाइल क्रैक के लिए क्या था मेरा, पी ए इज इक्वल टू के ए गामा एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 2c' h रूट ओवर के ए। ये मेरा था बिफोर टेंसाइल क्रैक। ओके, तो ये हमने निकाल लिया। तो आज हमने क्या देखा? क्रिटिकल डेप्थ फॉर टेंसाइल क्रैक, that is ZC is equal to 2c dash by gamma root over Ka and Pa means Rankine earth pressure for cohesive soil is Ka gamma Z minus 2c root over Ka, 2c dash root over K।